We start with atoms. The atoms and nuclei. Okay. Atoms and nuclei. So we start with Rutherford's experiment. So we have derivation in Rutherford experiment also, because if you see HSC textbook, they have asked a question, okay, in solved example. So we'll try to cover that first. Okay, it is based on Rutherford's experiment. It is called distance of closest approach. So that formula we need to do. Approach. Okay. So if you remember the experiment, what was the gold foil experiment? We have a gold foil, and we have a gun, alpha gun. We fire alpha particles on this gold foil, and we have kept fluorescent screen, है ना, ZNS का screen रखा हुआ है कि wherever alpha particle falls, you'll get to know where it falls, isn't it? And we have realized कि most of the alpha particle will go as it is without getting deflected and things like that. There are few alpha particles which will be deflected 1 to 1. There is a deflection of 1 to 1. That means 180 degrees का deflection, right? So why this happens? Because you understand कि alpha particle is given kinetic energy. Okay, that kinetic energy can be given by providing high potential difference. So we have a battery here. We call it accelerating voltage, है ना? So if you give alpha particle charge, you remember it is 2e plus 2e, right? And mass of alpha particle is 4 times mass of proton. So if I provide potential difference of V, kinetic energy gained by alpha particle will be how much? It will be Q into V. That will be equal to 2 eV. Okay. So if they give potential difference, you can find kinetic energy like this, or they might give you velocity. If they give you velocity, then you can use kinetic energy के लिए half mv square. So it depends what data is given to you. Okay. ठीक है. तो with this kinetic energy, alpha particle will go towards the gold foil. Okay. However, you should understand that alpha particle is also positively charged, isn't it? This is your alpha particle. It's doubly ionized helium atom, alpha particle. Okay. And your gold nucleus, which is charge is plus Ze. Z for gold is 79, isn't it? Okay. So both are positively charged, है ना? How much ever energy it will carry, वो energy लेके वो गोल के न्यूक्लियस के पास तक आएगा, और ये भी जो भी एनर्जी जो काइनेटिक एनर्जी लेके आ रहा है एकदम पास तक आएगा, और फिर इट शुड जस्ट स्टॉप, है ना, बिकॉज देयर इज अ रिपल्शन बिटवीन टू पॉजिटिव चार्जेस, राइट? तो एट सम डिस्टेंस इट शुड स्टॉप, इजंट इट? उसके बाद इट शुड बी रिपेल्ड बैक, इजंट इट? तो वो जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस है, ओके, उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, कि कितना पास में तुम्हारा हीलियम या अल्फा पार्टिकल आ रहा है, ओके, टू द गोल्ड. समझ में आया क्या? एंड तो वी ऑलरेडी नो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इज सम के. हमने इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के दिया है, के का वैल्यू ये इन्फॉर्मेशन से निकाल सकते हैं. अगर दिया है तो पोटेंशियल डिफरेंस दिया है तो ये फॉर्मूला यूज करो, वेलोसिटी दिया है तो ये फॉर्मूला यूज करो. तो काइनेटिक एनर्जी के लेके आया अल्फा पार्टिकल, दिस इज द इनिशियल स्टेट एंड देन दिस इज द फाइनल स्टेट वेयर दे आर क्लोजेस्ट टू ईच अदर. ओके, तो यू शुड नो दैट इफ यू हैव टू चार्ज पार्टिकल्स सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, इसका चार्ज प्लस 2e है ना, तो देयर इज अ पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्टिंग राइट हियर, है ना? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा हुआ है. व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज सिस्टम? इट इज k q1 q2 upon r. okay, so I can say that potential energy, capital U is the symbol, is equal to k, which is 1 upon 4 pi epsilon naught, q1 in this case is plus Ze into, ठीक है, 2e upon r naught, है ना? और काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे k है, तो वी कैन से दैट इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू पोटेंशियल एनर्जी एट दिस स्टेट, isn't it? So we can always say that kinetic energy of alpha particle will be potential energy at the end. So k should be equal to 1 upon 4 pi epsilon naught 2 Ze square upon r naught, and r naught is equal to 2 Ze square upon 4 pi epsilon naught k. अब k दे के they can ask you r naught also, या उल्टा I can give you r naught and I can ask you k also. तो HSC टेस्ट बुक जो क्वेश्चन है, टेक्स्ट बुक क्वेश्चन, ओके, दे हैव गिवन इन द बॉक्स. ओके, आई थिंक थियरी के बाद में कहीं तो एक बॉक्स में बना कर रखा है. इट्स अ सॉल्व एग्जांपल. तो व्हाट दे हैव गिवन, ऐसा क्वेश्चन दिया उन्होंने, कैन यू फाइंड, दे हैव गिवन अस रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल दिया है, उसका न्यूक्लियस ऑफ अल्फा पार्टिकल रेडियस दिया हुआ है, और गोल्ड फॉइल का जो गोल्ड न्यूक्लियस है उसका रेडियस भी दिया है हमको, r1 r2 दे हैव गिवन, एंड दे सेड find the kinetic energy of alpha particle
सो दैट कि दे जस्ट टच ईच अदर, कि यहां से इसको के एनर्जी से हमने फेंका है, इट हैज अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ के एंड इट गोज टुवर्ड्स द गोल्ड न्यूक्लियस एंड जस्ट यहां पर आके वो रुक जाए. दिस इज द फाइनल स्टेट. द इनिशियल स्टेट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दिस इज द इनिशियल स्टेट एंड दिस इज द फाइनल स्टेट. तो ऐसा होने के लिए कितना काइनेटिक एनर्जी चाहिए रहेगा, दैट्स द क्वेश्चन. ओके, R1 R2 तुमको दिया हुआ है, तो इट्स सो सिंपल. वी से काइनेटिक एनर्जी एट द स्टार्ट इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट द एंड, है कि नहीं. हमने जो R0 लिया था यहाँ पे, व्हाट वाज R0? क्लोजेस्ट डिस्टेंस पॉसिबल, राइट. कैन आई जस्ट सब्स्टिट्यूट R0 एज R1 plus R2 एंड गेट द आंसर. तो सिंपल है. तो इससे काइनेटिक एनर्जी विल सिंपली 1/4 pi epsilon naught पोटेंशियल एनर्जी एट द एंड 2ZE² अपॉन R1 plus R2. अभी R1 plus R2 का वैल्यू दिया है, Z पता है तुम्हें, गोल्ड का E पता है, दिस आर ऑल कांस्टेंट. 1/4 pi epsilon naught इज 9 × 10⁹, isn't it? तो ये वैल्यू पता है हमको, Z भी पता है, E भी पता है, R1 plus R2 को प्रोवाइड किया है, तो यू कैन ऑलवेज फाइंड काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी एट द स्टार्ट इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट द एंड. सिंपल. इज मेकिंग सेंस? तो इसलिए मैंने ये फॉर्मूला ले लिया तुम्हारे सामने, बिकॉज देयर वाज अ सॉल्व एग्जांपल बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट. एनी क्वेश्चंस हियर? नाउ लेट्स गो टू द इंपॉर्टेंट डेरिवेशन. ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, उस पर आते हैं. ओके, सो नेक्स्ट डेरिवेशन है बेस्ड ऑन बोर थियरी, है ना. फटाफट हम पहले बोर थियरी देख लेते हैं. ओके, बोर थियरी. तो बोर्स एटॉमिक थियरी इज बेस्ड ऑन 3 postulates. फर्स्ट postulate क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस. ओके, दिस इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस with some velocity at a distance r, which can be called as radius of orbit. Okay, and charge of electron is E, charge of nucleus is plus Ze, isn't it? Okay, and to perform circular motion around the nucleus, what do we need? We need centripetal force, right? तो उन्होंने यही बोला है कि electrons are revolving around nucleus in circular orbits. Okay, and centripetal force required for circular motion is given by the Coulomb's force of attraction between the positive and negative charge. So we can say centripetal force required for circular motion is given by Coulomb's force of attraction. Okay, centripetal force का क्या है फॉर्मूला? mv²/r. m mass of electron, v velocity of electron, r radius of orbit is equal to 1/4 pi epsilon naught. क्या आएगा? Q1 Q2 ना, तो ZE into E upon R², Q1 Q2 upon R². That's the formula. You should know that कि force and electric field are vector quantities, so we don't put the charge का sign there. Potential energy and electric potential both are scalar quantities, so we have to put the sign. In fact, पीछे वाले जो सम है उसमें भी मैंने साइन डालना चाहिए, because what is U, Q1 Q2 ना, तो ये पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी, तो दोनों पॉजिटिव था इसलिए मैंने वहाँ साइन लिखा नहीं, बट पोटेंशियल एनर्जी में साइन आता है. समझ में आया क्या? इन स्केलर क्वांटिटीज यू हैव टू पुट द चार्ज का साइन एज वेल. तो स्केलर ये फोर्स इज वेक्टर, तो वी आर नॉट वरीड अबाउट द साइंस हियर, है ना. तो दिस इज अवर पोस्टुलेट नंबर 1, दिस इज रिलेशन नंबर 1 दैट वी शुड कीप. व्हाट इज द सेकंड पोस्टुलेट? सेकंड पोस्टुलेट क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स डोंट रिवॉल्व इन एनी रैंडम ऑर्बिट. कहीं भी जगह मिल जाए वहां ऑर्बिट नहीं करेगा, राइट. इट विल ऑर्बिट इन वेरी स्पेसिफिक प्लेसेस. नाउ दिस ऑर्बिट्स आर कॉल्ड एज स्टेशनरी ऑर्बिट्स. जिस स्पेसिफिक ऑर्बिट जहां पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसको बोलते हैं स्टेशनरी ऑर्बिट्स. स्टेशनरी ऑर्बिट्स आर दोज ऑर्बिट्स वेयर इलेक्ट्रॉन विल नॉट एमिट एनर्जी, है ना. रोटेट करते करते एनर्जी एमिट नहीं करेगा. समझ में आ रहा है क्या? ओके, एंड वेयर इज दिस? सो देयर इज नो एमिशन ऑफ एनर्जी बाय इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग revolution. Okay, these are the special orbits, and these orbits are formed. कहाँ पे बनेगा ये ऑर्बिट? जहाँ पे एंगुलर मोमेंटम है ना, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंटीग्रल मल्टीपल, स्पेसिफिक है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π. Correct? h is Planck's constant, 2π is also constant. Now what is the symbol of angular momentum? Capital L. So we say that कि L is nh/2π, isn't it? अब L का फॉर्मूला क्या है? फॉर पॉइंट ऑब्जेक्ट्स यू कैन टेक L का फॉर्मूला है mvr. तो इसको लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं L is equal to mvr is equal to nh/2π, and this is my relation number 2. सेकंड पोस्टुलेट, सेकंड रिलेशन मिल रहा है ना. थर्ड पोस्टुलेट क्या है? थर्ड पोस्टुलेट और ये बता रहा है कि व्हेन इज एनर्जी एमिटेड और एब्जॉर्ब बाय द इलेक्ट्रॉन. ओके, तो ऑर्बिट करने के टाइम में एनर्जी एमिट नहीं करता. वो एनर्जी कब एमिट करता है? जब वो ट्रांजिशन करता है. समझ में आ रहा है क्या? तो व्हेन इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशंस फ्रॉम अपर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट, ऊपर से नीचे जा रहा है, तो उसको एनर्जी एमिट करना होता है. ओके,
एंड जब लोअर से ऊपर जा रहा है तो इट हैज टू एब्जॉर्ब एनर्जी टू डू द ट्रांजिशन. ओके, तो लेट्स कॉल अपर ऑर्बिट एज nth अपर ऑर्बिट एंड मैं इसको pth लोअर ऑर्बिट बोलता हूँ. इसको p मतलब लोअर ऑर्बिट का नंबर है और n मतलब अपर ऑर्बिट का नंबर है. Okay, and let's assume that in nth orbit the energy is some En and in the pth orbit energy is some EP. मतलब इमेजिन करो कि ये 10 जूल्स है और 8 जूल्स है. ठीक है, तो 10 से जब 8 पे आएगा तो 2 जूल्स एनर्जी जो एक्स्ट्रा थी उसको बाहर निकालना पड़ेगा, राइट? तो वो बाहर निकाल रहा है इन द फॉर्म ऑफ फोटोन. एक फोटोन एमिट हो जाएगा, isn't it? Let's call energy of photon as E. You know what is energy of photon का formula? It is h nu और hc by lambda, है ना? What is the nu क्या है यहाँ पे? फ्रीक्वेंसी है. लैम्डा क्या है? वेवलेंथ. तो जब भी इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आएगा, अपर ऑर्बिट से नीचे ऑर्बिट पे आ रहा है, तो एक फोटोन एमिट होगा ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू और वेवलेंथ लैम्डा. तो वी कैन से दैट एनर्जी या एनर्जी ऑफ फोटोन एमिटेड इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ एनर्जी फ्रॉम द अपर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट, और यू कैन राइट hc by lambda is En minus EP. दिस इज द थर्ड पोस्टलेट. समझ में आया? यही एनर्जी एब्जॉर्ब होगा व्हेन इट गोस फ्रॉम लोअर टू अपर. इज मेकिंग सेंस? Any questions in the postulates? ठीक है, let's come to the derivation now. Okay, so we have to derive radius of orbit. Radius of orbit कर लेते हैं, बहुत ही सिंपल है. देखो फर्स्ट पोस्टलेट ले लो पहले तो कि mv square by r is equal to 1/4 pi epsilon naught z e square upon r square, and second postulate was mvr is equal to nh upon 2 pi. तो यहाँ से ना लेट्स गेट v का वैल्यू फर्स्ट फ्रॉम द सेकेंड पोस्टुलेट. वी कैन राइट v एज nh अपॉन 2 pi mr, करेक्ट? एंड लेट्स सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ v इन दिस इक्वेशन. ओके, तो आई विल सब्स्टिट्यूट in 1 in equation 1. Let's call this as 1, this as 2 and this as 3. okay, क्या आएगा देखो, v का वैल्यू है ना, तो v स्क्वायर डालना है, बट यहाँ पे v स्क्वायर है तो विल स्क्वायर दिस. ओके, m बाय r स्क्वायर दिस n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 pi स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर. दिस इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. राइट हैंड साइड यू हैव 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट z e स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर. देखो यहाँ पे r स्क्वायर कैंसिल हो गया. ठीक है, पाई पाई बाय बाय 4 बाय बाय, है ना? और क्या है भाई, एक m यहाँ से चला जाएगा. ठीक है, व्हाट डू वी हैव? वी हैव यहाँ पे n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन r पाई m, है ना, इज इक्वल टू व्हाट डू वी हैव हियर, z e स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया. ठीक है, हमको r का वैल्यू चाहिए तो क्या करो, इसको ये r को यहाँ ले लेते हैं. ठीक है, टेक दिस r ऑन द अदर साइड, टेक z एंड e स्क्वायर हियर इन द डिनोमिनेटर एंड टेक द एप्सिलॉन नॉट ऊपर. तो क्या मिलेगा? विल गेट, I do that, अगर r का वैल्यू is n square by z, I'm taking n square and z are variables. Okay, I'm separating them, and then I have h square epsilon naught upon pi m e square. This is the formula. And ये पूरा constant है ना, Planck's constant, permittivity of free space 3.14 pi, mass of electron, charge of electron. If you substitute all of this, you should get 0.532 angstrom. N is here orbit number and Z is your atomic number. Okay, so if the element changes, you change the Z. If the orbit changes, you change the N का value, है ना? First orbit में value N का 1 होगा, second के लिए 2 and so on. Any questions here? समझ में आया ना? Easy है. तो इसको भी नाम दे देते हैं. Division number 4 ले लेते हैं. We'll use this. अब next derivation is find v का value. How do I get v का value? See in this expression, the third expression, यहाँ पे सिर्फ r सब्स्टिट्यूट कर दो, बस मिल जाएगा आंसर, है ना? बट 1/r सब्स्टिट्यूट करना है बिकॉज r इज इन द डिनोमिनेटर. तो कर लेते हैं, देखो सेम रिलेशन यूज करते हैं. तो वी हैव v इज इक्वल टू nh अपॉन, है ना, 2 pi m. r के प्लेस पे आई पुट द वैल्यू. ओके, m, है ना? देखो ये r का ये वाला सब्स्टिट्यूट करेंगे, z pi m e स्क्वायर इन द न्यूमरेटर, z pi m e square. Okay, and denominator we have n square h square epsilon naught, n square h square epsilon naught. ठीक है, क्या आ रहा है देखो, h h कैंसिल एंड देन कैंसिल. कोई गड़बड़ क्या मैंने? नहीं. ठीक है, 2, ये z है, दिस इज z. ओके, पाई 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 बराबर है, m भी हो रहा है. ठीक है, तो यू हैव
वी जेड अपॉन एन, है ना, ई स्क्वायर ऊपर, नीचे 2 एच एप्सिलॉन नॉट, करेक्ट। एंड इसका वैल्यू इफ यू रिमेंबर 2.18 कुछ है ना, इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। दैट्स आवर फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी। ठीक है, इसको 4 ले लेते हैं, 4 तो हो गया, 5 ले लेते हैं, है ना। तो वी गॉट रेडियस, वी गॉट वेलोसिटी, है ना। व्हाट कैन दे आस्क मोर इसमें? ओके, अब कुछ कुछ फॉर्मूले जो है दे विल इनडायरेक्टली आस्क यू। ओके, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन या फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन, तो इट इज बेस्ड ऑन वी एंड आर ओनली। ओके, इफ दे आस्क मी व्हाट इज टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, टाइम पीरियड एक सर्कल घूमने के लिए कितना टाइम लग रहा है इलेक्ट्रॉन को, वो पूछ लिया तो विल से टाइम इज डिस्टेंस ट्रैवल इन वन सर्कल इज 2πr अपॉन v। तो अगेन सी यू नो r and v, you can substitute and get time period. if they ask you frequency, ठीक है, फ्रीक्वेंसी पूछ लिया अगर, तो यू नो दैट फ्रीक्वेंसी सिंपली 1 अपॉन टाइम, तो इट इज v अपॉन 2πr। एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछा तो, एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछा तो क्या करोगे? सेम ही है ना, ओमेगा इज 2πf और 2π/t, है ना, वी नो f and t का वैल्यू कैन सब्स्टिट्यूट। ओके, कभी कभी दे कैन आस्क यू इफेक्टिव करंट, इफेक्टिव करंट पूछ सकते हैं। ओके, इफ दे आस्क मी इफेक्टिव करंट I, तो क्या होगा करंट? व्हाट इज करंट? इट इज चार्ज फ्लोन पर सेकेंड, राइट। तो इट इज EF, चार्ज फ्लोन इज इलेक्ट्रॉन का चार्ज E एंड फ्रीक्वेंसी पर सेकेंड, तो फ्रीक्वेंसी, और यू कैन राइट E/t ऑल्सो, इट विल बी सिंपली क्या आएगा, तो t का वैल्यू लिखा हमने 2πr, तो EV अपॉन 2πr, दिस इज द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट। इलेक्ट्रॉन घूम रहा है अगर ऑर्बिट में, इट प्रोड्यूसेस सम सॉर्ट ऑफ करंट, तो इफेक्टिव करंट चाहिए तो ऐसे बोल सकते हैं। ओके, एंड इफ यू नो इफेक्टिव करंट यू कैन ऑल्सो फाइंड वन मोर थिंग, क्या था वो? B एट सेंटर, है ना। जैसे रिमेंबर वी हैव, इफ यू हैव अ वायर, ओके, कैरिंग करंट I, तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना बन रहा है? μ0 I अपॉन 2r, isn't it? तो we can also say that electron revolving around the nucleus is going to be the same thing, right? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो हमने इफेक्टिव करंट तो निकाल ही लिया है, और हमको R भी पता है, तो we can use the same formula। I का वैल्यू सब्स्टिट्यूट फ्रॉम हियर, R का वैल्यू टेक रेडियस ऑफ ऑर्बिट एंड यू कैन गेट द आंसर। R क्या हो जाएगा? रेडियस ऑफ एटम हो जाएगा, और I का वैल्यू यहाँ से ले लेंगे एंड विल गेट B एट सेंटर ऑल्सो। इसमें से कुछ भी पूछो तो हमको आना चाहिए। ओके, ऑल आर बेस्ड ऑन V एंड R ओनली। इज मेकिंग सेंस? ठीक है, एनीथिंग कैन बी आस्क्ड। ओके, दे यूज्ड टू आस्क फ्रीक्वेंसी इन द प्रीवियस पेपर्स ऑफ HSC, इट वाज पार्ट ऑफ टेस्ट बैक क्वेश्चन ओनली। ओके, ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। Then let's calculate energy of electron in any orbit. Energy of electron in nth Bohr orbit. Okay. देखो, अब एनर्जी क्या है, देखो समझना पड़ेगा कि इफ यू लुक एट दिस सेटअप, कि यहाँ पे पॉजिटिव न्यूक्लियस है हमारे पास, प्लस Z इसका चार्ज है, ओके, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जो सर्कुलर मोशन कर रहा है ना, विथ सम वेलोसिटी v हियर, करेक्ट, एंड द डिस्टेंस इज r हियर। तो दो चीज है यहाँ पे, पहले तो बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज हैविंग वेलोसिटी, तो देयर हैज टू बी काइनेटिक एनर्जी, इजंट इट? काइनेटिक डन डील है, होगा ही। ओके, प्लस वी हैव टू चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, राइट, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी आ जाएगा। तो दो एनर्जी, एक पोटेंशियल और काइनेटिक, दोनों लिखना पड़ेगा। तो लिखते हैं, देखो। ओके, वी स्टार्ट विद काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन फर्स्ट। सिंपली लिखो हाफ mv²। ओके, हाफ m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, v का वैल्यू क्या निकाला हमने? Z अपॉन n। ओके, क्या था? E² अपॉन h², h 2h एप्सिलॉन नॉट था क्या? ऐसे ही है ना कुछ? इज इट करेक्ट? E² अपॉन 2h एप्सिलॉन नॉट। ओके, इट्स करेक्ट। तो विल जस्ट स्क्वायर दिस टर्म। सो व्हाट डू आई गेट? आई विल गेट Z² अपॉन n²। ओके, इजंट इट? एंड m e⁴, है ना, 4 2 8 h² एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। ठीक, दैट्स द वाला काइनेटिक एनर्जी, इजंट इट? एंड इफ यू वांट बॉक्स कर लेते, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, राइट। तो U का फॉर्मूला बताइए, इट इज K Q1 Q2 अपॉन R। ओके, बट साइंस वी हैव टू पुट। ओके, डालो, आ जाओ, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, साइंस डालना पड़ेगा। ओके,
तो ZE पॉजिटिव इनटू इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, तो माइनस E अपॉन R इज द रेडियस। तो U का वैल्यू मिल गया हमको, पोटेंशियल एनर्जी मिलेगा माइनस ZE² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, R की वैल्यू वी हैव टू सब्स्टिट्यूट। व्हाट इज दैट वैल्यू? इट इज है ना n² बाई Z h² एप्सिलॉन नॉट पाई me², है ना। तो n² बाई Z h² एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे पाई me², ठीक है। ओके, देखो यहाँ पे क्या क्या कुछ कट रहा है क्या यहाँ पर? हाँ कट रहा है, देखो पाई पाई बाय बाय हो रहा है। ओके, और कुछ बस ये Z है, ठीक है। तो यू हैव माइनस Z² अपॉन n²। ओके, यू शुड सी दैट यू गेट द सेम आंसर एज काइनेटिक एनर्जी, खाली वहाँ पे 8 है तो यहाँ पर 4 होना चाहिए। ओके, तो यू हैव me⁴ है ना, h² एप्सिलॉन नॉट। टू थिंग्स टू नोटिस, दो चेंजेस है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूला में। माइनस साइन आ रहा है यहाँ पर, है ना, प्लस यहाँ पर 8 का फैक्टर तो यहाँ पर 2 आएगा। ओके, विच बेसिकली टेल्स मी इफ दिस वैल्यू इज x, इसमें ही -2 मल्टीप्लाई करो तो तुमको ये वैल्यू मिलती है, दिस इज -2x। ओके, विच मीन्स इफ आई हैव टू फाइंड टोटल एनर्जी इन nth ऑर्बिट En, it is simply kinetic energy plus potential energy, which will be if I add them x minus 2x minus x, right? So minus x minus z² upon n² me⁴ 8h² epsilon naught square, and you know the value of this is in terms of EV क्या है भाई वैल्यू? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हो गया तुम्हारा डेरिवेशन खत्म। ओके, अभी एक और फॉर्मूला बताता हूँ विच माइट बी यूजफुल इन न्यूमेरिकल्स, ठीक है। आई एम नॉट श्योर, पहले वी यूज्ड टू यूज इट। ओके, अभी भी HSC में आया तो ओके, एंट्रेंस वालों को तो पता ही है ये। ओके, दिस वैल्यू इज इक्वल टू RHC, R is Rydberg's constant. This is the formula of energy in terms of Rydberg's constant. ठीक है, तो Rydberg कभी कभी क्या करते हैं, ये ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सो ऑर्बिट इज दिस मच, En दे देंगे और बोलेंगे उससे Rydberg निकालो, तो देन यू नीड दिस फॉर्मूला। समझ में आया ना, एनर्जी दिया Rydberg पूछ लिया तो वी कैन ऑलवेज गो फॉर दिस फॉर्मूला। समझ में आया क्या? ठीक है, इजी है ना। लेट्स गो फॉर नेक्स्ट वन। एनी क्वेश्चंस टिल नाउ? ठीक है, सी नाउ व्हाट वी कैन डू इज थोड़ा सा तुमको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का बैकग्राउंड देते हैं, बिकॉज वी नीड दिस बैकग्राउंड फॉर अनदर प्रूफ। सी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में जो डिटेल में स्टडी किया है उसने वो किया है रिडबर्ग ने। ओके, एंड व्हाट रिडबर्ग टोल्ड अस कि रिडबर्ग गिव अस 2 पॉइंट्स। फर्स्ट ही सेड कि लाइन स्पेक्ट्रम दिख रहा है उसको। ओके, सेकंड रिडबर्ग वाज स्मार्ट इनफ टू कैटेगराइज ऑल द लाइंस दैट वाज ऑब्जर्व्ड इन स्पेक्ट्रम। ठीक है, जितने भी नंबर्स आ रहे वेवलेंथ पे उसने कैटेगराइज कर दिया, उसको एक पैटर्न दिख गया उसको। ठीक है, एंड ही सेड कि देयर आर 5 सीरीज एंड जनरल फॉर्मूला फॉर ऑल दोस 5 सीरीज इज समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट। इफ यू वांट वेवलेंथ इन एनी सीरीज यू कैन यूज दिस फॉर्मूला, 1 lambda is r times 1 p² minus n²। okay, it is just an observation based formula, but this formula can be derived using Bohr also। हम बोर से डिराइव करेंगे उसको। तो क्या क्या बताया उससे, देखो अगर तुमको लाइमन सीरीज चाहिए ओके तो तुमको p का वैल्यू 1 लेना होगा, और बाल्मर के लिए p का वैल्यू 2 हो जाएगा। ओके, पास्चन के लिए p का वैल्यू विल बी 3 एंड देन यू हैव ब्रैकेट सीरीज, उसके लिए p का वैल्यू 4 हो जाएगा। एंड देन यू हैव p फंड सीरीज, इसको 5 बोलते हैं। अब ये तो द मोमेंट आई फिक्स द सीरीज नेम ओके, p का वैल्यू इज फिक्स्ड। व्हाट इज n का वैल्यू? n का वैल्यू गोज फ्रॉम p+1 टू इंफिनिटी। यू शुड नो n का जो रेंज है वो p+1 टू इंफिनिटी है। ओके, तो मतलब यहाँ पे n का वैल्यू क्या हो जाएगा? p+1 2 3 4 ऐसे चलेगा। ठीक है, यहाँ पे n का वैल्यू क्या चलेगा? p+1 3 4 ऐसे, है ना। यहाँ पे 4 5 एंड ऑल दोस थिंग्स, यहाँ पे आएगा 5 6 इंफिनिटी तक जाएगा, यहाँ पे 6 7 इंफिनिटी तक जाएगा। तो मतलब फॉर एग्जांपल, ठीक है, इफ दे आस्क मी गिव मी द फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज, बाल्मर का पहला लाइन बताओ, तो बाल्मर जैसी वर्ड यूज कर तो p का वैल्यू 2 ले रहा है। ठीक है, सेकेंडली क्या करना है कि फर्स्ट लाइन बोला है तो n का वैल्यू 3 लेंगे। अगर लास्ट लाइन बोलता या सीरीज लिमिट वर्ड यूज करता तो आई टेक ns इंफिनिटी। फर्स्ट लाइन के लिए पहला वाला वैल्यू, सीरीज लिमिट या लास्ट लाइन के लिए इंफिनिटी। इज इट मेकिंग सेंस?
ऑल्सो यू मस्ट नो वन मोर थिंग यहाँ पे कि आर का जो वैल्यू है इज 1.097 10 to the power 7 है ना मीटर पर मीटर, करेक्ट? ओके, बट ये वैल्यू से ज्यादा अच्छा आपको न्यूमेरिकल्स में क्या पड़ता है कि 1/r का जो वैल्यू होता है इट इज 911.6 एंगस्ट्रॉम, या अप्रोक्सीमेटली इसको हम 912 एंगस्ट्रॉम लेके काम चला जाते हैं. तो मोर यूजफुल इंफॉर्मेशन इज कि 1/r का वैल्यू वी कीप, बिकॉज लैम्डा जब करोगे वेव नंबर जब निकालोगे तो लैम्डा निकालने बोला तो आर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, इजंट इट? यू हैव टू टेक द रेसिप्रोकल, तो ये काम ज्यादा आता है. एनी क्वेश्चंस? ठीक है. ऑल्सो यू मस्ट नो कि लाइमन सीरीज जो था वो इट वाज ऑब्जर्व्ड इन यूवी रीजन, बाल्मर सीरीज इज ऑब्जर्व्ड इन विजिबल रेंज. ठीक है, एंड ये जो बाकी के हैं वो सब इंफ्रारेड रेंज में. दिस इज नियर इंफ्रारेड, दिस आर फार इंफ्रारेड. ओके, तो ये कैटेगरी पता होना चाहिए कि यूवी कौन है, विजिबल कौन है, थिंग्स लाइक दैट. समझ में आया क्या? ओके, ठीक है. लेट्स गो फॉर डेरिवेशन. अभी हमको कभी कभी क्या पूछ लेते हैं वो लोग, दे माइट आस्क यू ओके कि फाइंड रिडबर्ग्स फॉर्मूला ओके यूजिंग बोर थियरी. रिडबर्ग का फॉर्मूला बोर थियरी से निकालो. ओके, रिडबर्ग एक्चुअली एक और बात बोल दीजिए, दिस आर ऑल हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम. ओके, अच्छा लिखा था, दिस ऑल फॉर हाइड्रोजन. ये सारा कुछ हाइड्रोजन के लिए. ठीक है, आ जाओ. तो वी कैन से यूजिंग बोर थियरी, यूजिंग बोर थियरी यू हैव टू गेट रिडबर्ग का फॉर्मूला. बहुत ईजी है. देखो कि बोर ने क्या बोला कि जब इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर जंप करता है, जब n से th ऑर्बिट में आएगा, वो जब जंप करेगा तो एनर्जी एमिट करता है. एंड वी नो दैट कि एनर्जी एमिटेड इज hc by lambda एंड दैट इज इक्वल टू En minus Ep. n and p क्या है? दे आर ऑर्बिट नंबर्स, राइट? एंड वी हैव जस्ट डिराइव्ड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ En. इट इज minus z square upon n square 13.6 eV, isn't it? ओके, एंड EP का वैल्यू क्या हो जाएगा? सेम फॉर्मूला लगाएंगे बट जस्ट ऑर्बिट नंबर विल चेंज. माइनस जेड स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर 13.6 EV. सबसी करो इसमें. ठीक है, तो यू विल गेट hc by lambda इज hc by lambda. En की वैल्यू क्या है? कैन यू टेक 13.6 एंड जेड स्क्वायर कॉमन, ना ले लेते कॉमन, EV इंटू. ठीक है, सो En माइनस EP माइनस एन स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर है ना, माइनस एन स्क्वायर माइनस माइनस पी स्क्वायर, तो पॉजिटिव हो जाएगा, राइट? तो व्हाट डू यू गेट? ये एच सी को नीचे ले लेते हैं एंड विल गेट आवर फॉर्मूला. तो मिल रहा है हमको 1 लैम्डा इज जेड स्क्वायर 13.6 EV अपॉन एच सी इंटू 1 पी स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर. ये EV में है, इसको कन्वर्ट करो जूल्स में. 1.6 10⁻19 से मल्टीप्लाई करके H का वैल्यू पुट है 6.634 10⁻34. C का वैल्यू 3 × 10⁸. सब्स्टिट्यूट करो. व्हेन यू फाइंड दिस वैल्यू, ओके, दिस वैल्यू इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू R. ठीक है, यू गेट Z स्क्वायर R 1/p स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर. करेक्ट? एंड फॉर हाइड्रोजन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Z? इट इज 1. So we arrive at the same formula, but it gives you better perspective. ये जो है फॉर्मूला थोड़ा और अच्छा पर्सपेक्टिव देता है. ओके, यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि P जो है वो लोअर ऑर्बिट है, N जो वो हायर ऑर्बिट है. तो इसका मतलब ये है कि इफ यू सी दैट, इसको हम बोलते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम. ओके, दिस शुड गेट क्लोजर एक्चुअली. तो ये फर्स्ट ऑर्बिट है, यहाँ पे एनर्जी कितना होगा? एनर्जी द फर्स्ट ऑर्बिट E1 इज माइनस 13.6 EV. वी आर यूजिंग द फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला पीछे लिखा था. ओके, E2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस 13.6 अपॉन 4 ना. ठीक है, तो माइनस 3.4 EV. एंड देन थर्ड ऑर्बिट विच इज माइनस 1.51 EV. एंड देन यू हैव फोर्थ ऑर्बिट विच इज 0.85 EV माइनस. And the fifth orbit E5 is 0. minus 554 is it? नहीं 54 यार 54 EV. तो हर ऑर्बिट में कुछ तो कुछ एनर्जी है. तो when I say Lyman series when I use the word I say कि P is fixed. P का वैल्यू हम 1 लेते हैं, राइट? लाइमन के लिए. इसका मतलब क्या है कि लोअर ऑर्बिट फिक्स कर दिया, तो जो भी ट्रांजिट n का वैल्यू क्या ले रहे हैं हम लोग? 2, 3, 4 एंड ऑल दोस थिंग्स. मतलब इलेक्ट्रॉन 2 से 1 पे जब आएगा, 3 से 1 पे जब आएगा, 4 से 1 पे जब आएगा, all these transitions will be called as Lyman series. समझा ना? ठीक है, मतलब लोअर ऑर्बिट हमेशा 1 ही होना चाहिए.
तो ये जो ट्रांजिशंस है, जब भी वो हायर से लोअर पे आ रहा है तो एनर्जी एमिट कर रहा है, और इसको ही हम लाइमन सीरीज बोल रहे हैं, है ना. व्हाट इज बाल्मर सीरीज? पी का वैल्यू विल बी 2, एन का वैल्यू 3 4, मतलब ट्रांजिशंस ऑन द सेकंड ऑर्बिट. कोई बाबा क्या नहीं ना, ठीक है. ये 2 ऐसे वाले, है ना. एंड दिस इज योर क्वेश्चन, ठीक है ना. एंड देन ब्रैकेट एंड देन यू हैव फन. ठीक है. दीज आर योर ट्रांजिशंस. तो बेसिकली दे आर जस्ट ट्रांजिशंस फ्रॉम हायर टू लोअर ऑर्बिट. ठीक है. दिस इज लाइमन, बाल्मर, Russian, bracket. They might ask you to draw this diagram also. बनाने बोल देते कभी कभी, ठीक है. At infinity energy will be 0. E को जैसे से ऊपर जा रहे हैं energy will become 0. Okay. Any questions here? See, they ask you same question में कभी ऐसे पूछ लिया कि ऐसे कुछ बोलेगी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन बता दो. कोई भी सीरीज का पूछ सकते हो लोग, है ना. तो यू मस्ट अंडरस्टैंड कि ई जो है वो hc/λ है ना, मतलब एनर्जी डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतना वेवलेंथ कम हो जाएगा, एंड वाइसा वर्सा, है कि नहीं. जितना ज्यादा एनर्जी, व्हाट इज दिस ई? एनर्जी डिफरेंस, राइट. EMS/EP, ये जितना ज्यादा होगा उतना वेवलेंथ कम, है ना. और एनर्जी डिफरेंस जितना कम होगा उतना वेवलेंथ ज्यादा हो जाएगा. तो इफ आई वांट शॉर्टेस्ट मतलब स्मॉलेस्ट वैल्यू वर्सेस इफ आई वांट लॉन्गेस्ट, ओके. तो अगर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बोल रहा है तो मुझे क्या चाहिए? एनर्जी डिफरेंस कम चाहिए. तो मैं n का वैल्यू p+1 ले लूंगा, बिकॉज नेक्स्ट ऑर्बिट ले लूंगा, है ना. p का वैल्यू, तो p का वैल्यू फिक्स बाय द सीरीज नेम. लाइमन बोला तो p का वैल्यू 1 ले लेंगे, राइट. तो p का वैल्यू फिक्स बाय द सीरीज नेम. उसमें लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पूछा तो नेक्स्ट ऑर्बिट ले लो. लेसर द एनर्जी डिफरेंस, मोर इज द वेवलेंथ. समझा. तो व्हेनेवर दे आस्क फॉर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ टेक ns p+1, ठीक है. और अगर बोला शॉर्टेस्ट बताओ तो मतलब एनर्जी डिफरेंस बहुत ज्यादा चाहिए, ठीक है. तो n विल बी ऑलवेज इन्फिनिटी. दैट इज मस्ट. समझ में आ गया लॉजिक? समझ में आया ना. तो शॉर्टेस्ट लॉन्गेस्ट कुछ पूछा तो ऐसे दिमाग लगाओ, है ना. एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होगा तो वेवलेंथ कम, एंड वाइस वर्सा. समझा. और p का वैल्यू ऑलवेज फिक्स बाय द सीरीज नेम. ओके, ठीक है. आगे बढ़ते हैं. और क्या भाई इसमें एक और डेरिवेशन है, दैट यू मस्ट नो इज दिस. ये है एक्चुअली प्रूफ ऑफ सेकेंड पोस्टुलेट. एक्चुअली ये प्रूफ इसलिए बताना चाहिए, इफ दे आस्क यू प्रूफ दैट इज फाइन, उसमें काम आ ही जाएगा, ओके. बट इसमें ना एक क्वेश्चन बनता है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. विल डिस्कस दैट क्वेश्चन आल्सो. 1 मार्कर का क्वेश्चन है. सेकेंड पोस्टुलेट ऑफ बोर. देखो बोर ने क्या बोला सेकेंड पोस्टुलेट में कि mvr is nh/2π, isn't it? So we have to prove this. इसके पीछे लॉजिक क्या है कि we imagine that electrons are forming because we said stationary orbits are those orbits where energy is not being transmitted, right? है ना. और stationary orbit ये word भी कहाँ से आ रहा है? stationary waves से आ रहा है. Because if you remember in superposition of waves, जैसे string है तो उसमें stationary waves like this are formed, right? देखा क्या हमने? व्हाट आर स्टेशनरी वेव्स? स्टेशनरी वेव्स आर दोस वेव्स जहां पे एनर्जी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसमिट नहीं हो रही है. प्रोग्रेसिव वेव्स विल ट्रांसमिट एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट, है ना. स्टेशनरी वेव्स में क्या होता है कि एनर्जी उसी पर्टिकुलर रीजन में स्टक हो जाती है, मतलब इट डजंट ट्रैवल. पार्टिकल्स विल कीप ऑन वाइब्रेटिंग विद द सेम एनर्जी फॉरएवर इफ देयर इज नो डेसिपेशन. समझ में आ रहा है क्या? तो यहाँ पे 10 पार्टिकल्स है तो वो उसी एनर्जी पर हमेशा वाइब्रेट करते रहेंगे, ना एनर्जी उधर जा रही है ना इधर जा रही है. वर्सेस इफ यू हैव प्रोग्रेसिव वेव तो ये वेव आगे आगे स्पेस में ट्रैवल करता है, तो एनर्जी को लेके जाता है अपने साथ में. समझ में आया? तो इन्होंने क्या बोला कि हमको लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन भी जो है वो स्टेशनरी वेव फॉर्म कर रहा है, इसलिए अपना एनर्जी उस ऑर्बिट में कहीं दे नहीं रहा है. समझ में आया ना. तो फॉर दैट टू हैपन, मतलब यहाँ पे वी कैन पुट इलेक्ट्रॉन्स आर फॉर्मिंग स्टेशनरी वेव्स इन ऑर्बिट. दिस इज द साइकोलॉजी ऑफ बोर. स्टेशनरी वेव्स इन ऑर्बिट. और उसमें क्या होना चाहिए? ये होने के लिए व्हाट द कंडीशन कि जो लेंथ ऑफ द ऑर्बिट है, जो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है फॉर एग्जांपल, इट हैज टू बी मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ, है ना. n λ/2 ऐसा होना चाहिए ना, isn't it? तो हमने क्या बोला कि जो ऑर्बिट है, ठीक है, उसका ये जो सर्कमफरेंस है या लेंथ बोलना चाहिए, इट हैज टू बी सम मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ, ऐसा कुछ,
है ना, ऐसा कुछ देखो यहाँ पे एक वेव, फिर यहाँ पे सेकेंड वेव, इजंट इट? तो दे आर फॉर्मिंग स्टेशनरी वेव्स लाइक दिस, ऐसे, ये ऐसे, ऐसा कुछ, दिस आर वन लूप, सेकेंड लूप, थर्ड लूप, फोर्थ लूप, समझे? तो यहाँ पे इफ यू सी, यहाँ पे 2 पाई आर इज इक्वल टू 2 लैम्डा हो रहा है, ऐसे वी कैन हैव 2 पाई आर इक्वल टू 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, 5 लैम्डा। जब जब ऐसे होगा कि सर्कमफरेंस ऑफ द ऑर्बिट इज मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ, वहां पे क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स कैन फॉर्म स्टेशनरी वेव्स इजीली, इजंट इट? ओके, तो हमने ये कंडीशन को जनरलाइज कर दिया। वी सेड फॉर दिस टू हैपन, फॉर इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म स्टेशनरी वेव्स इन जनरल क्या होना चाहिए? In general, circumference of orbit, which is 2 pi r, should be multiple of wavelength. ठीक है? Now, according to de Broglie's theory, according to de Broglie's hypothesis, de Broglie ने क्या बोला था कि लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p, है ना? अगर मैटर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वेव्स बना रहा है, isn't it? तो इलेक्ट्रॉन अ पार्टिकल इज बिहेविंग लाइक अ वेव, तो दोस वेव्स आर कॉल्ड एज मैटर वेव्स, समझा? मैटर वेव का वेवलेंथ चाहिए अगर, तो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस यूज करना पड़ता है। ओके, एंड वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव्स इज h अपॉन p, which is h अपॉन mv। बस यही सब्स्टिट्यूट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो देयरफॉर वी कैन से दैट 2 पाई r इज इक्वल टू n h अपॉन mv। रीअरेंज द टर्म्स, टेक दिस mv हियर, 2 पाई नीचे, तो हैव mvr इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। तो द प्रूफ इज वेरी सिंपल, बट मोर देन द प्रूफ हमको क्या चाहिए सुनो, एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछते हैं वो लोग, वो ऐसे पूछेंगे फाइंड डी बाई वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फोर्थ ऑर्बिट। ठीक है, तो तुम थोड़ा वेलोसिटी निकालोगे, फिर मास, ये सब थोड़ा, ये फॉर्मूला नहीं यूज करोगे, तुमको ये फॉर्मूला यूज करना चाहिए। ठीक है, इफ दे आस्क की फाइंड डी बाई वेवलेंथ ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट, यू मस्ट यूज दिस। फॉर एग्जांपल समझ लो अगर ऐसे क्वेश्चन आया, ठीक है, एग्जांपल कि फाइंड डी बाई वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लेट्स से फोर्थ ऑर्बिट, ऐसे पूछ लिया हमको, तो तुम क्या करो, सिंपली राइट 2 पाई r इज इक्वल टू n लैम्डा, n का वैल्यू क्या लोगे 4, so lambda will be simply 2 pi r upon 4, isn't it? You will get pi by 2, r of fourth orbit is n square by z 0.523, तो वो कर लो, तो n square मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे 16, ठीक है, ओके, और इंटू 0.532 एंगस्ट्रॉम। समझ में आएगा? सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। तो इट विल बी सम ऑफ 4 pi into 0.53 angstroms. You can solve and get the answer. This formula is more reliable, easy calculation as compared to other methods. मतलब ज़्यादा कैलकुलेशन करना नहीं पड़ेगा आपने को। समझ में आएगा कैसे करना है? तो इसलिए ये फॉर्म क्वेश्चन के लिए मैंने वो बताया तुमको। बाकी ये भी पूछ सकते हैं इंडिपेंडेंटली, और या तो सिर्फ इतना ही पूछ सकते हैं 1 मार्क के लिए कि कंडीशन फॉर फॉर्मिंग स्टेशनरी वेव्स बाय इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट्स, तो ये भी सिर्फ पूछ सकते हैं 1 मार्क के लिए, बिकॉज 1 मार्कर्स आर पॉपुलर नाउ इन HSC ऑल्सो। ठीक है, या MCQ में आ जाएगा। समझ में आया क्या? अब यहाँ पे देखो, हमको वी हैव टू डू न्यूक्लियर फिजिक्स एंड न्यूक्लियर। ओके, सो फॉर न्यूक्लियर देयर आर कपल ऑफ थिंग्स दैट यू शुड नो, देन वी विल गो टू डेरिवेशंस आल्सो। कि व्हेन यू टॉक अबाउट न्यूक्लियस, वी हैव 2 एलिमेंट्स हियर। यहाँ पे दो चीजें हैं, मतलब एक है प्रोटॉन, दूसरा है न्यूट्रॉन, इजंट इट? ओके, दे आर कॉल्ड एज न्यूक्लियॉन्स, इजंट इट? उनको हम न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं बिकॉज न्यूक्लियस पे बैठे हैं ये लोग। ओके, मास ऑफ प्रोटॉन and mass of neutron में तो mass of neutron is slightly heavier as compared to proton, थोड़ा heavy है हल्का सा, but for calculation purpose हम mass of proton, mass of neutrons को equal ले लेते हैं, and they are approximately equal to m, which is 1.67 10 to the power minus 27 kg, isn't it? Okay, तो ये calculation के लिए हम equal मान लेते हैं, and if I write a, तो इसका मतलब क्या है, atomic, ऐसे हम लिखते हैं ना x a z, ऐसे हीलियम के लिए लिखेंगे 4 2, isn't it? So what is 4 here? 4 represents atomic mass number, right? And 2 represents atomic number. So atomic number is also equal to number of protons, isn't it? ना, Z का मतलब क्या है? Number of protons, right? So if they ask me number of protons, I'll say it is simply Z. And what is A? Atomic mass number. इस mass number दो चीज होती है ना, इसमें होता है number of protons plus number of neutrons, isn't it? So if I want number of neutrons, it will be what? It will be A minus Z, because A में number of protons, neutrons दोनों है, उसमें से number of protons निकाल लो, isn't it? So we have number of neutrons is A minus Z, ये है, ठीक है। If they ask me find mass of nucleus, ठीक है, अब हम धीरे धीरे डेरिवेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। What is mass of nucleus? It is total mass of proton plus total mass of neutrons, है ना? ठीक है, तो number of
टोटल मास ऑफ प्रोटॉन क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स विच इज ए माइनस जेड इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन्स. अगर अप्रोक्सीमेट करना है तो वी कैन ऑलवेज से दैट कि एम पी एम एन इज सेम, तो जेड एम प्लस ए माइनस जेड एम विच इज अप्रोक्सीमेटली ए एम, isn't it? So we can say that mass of nucleus depends on what? Atomic mass number, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है. Okay, then you should know about something called as size of nucleus, है ना. What is size of nucleus? Basically radius of nucleus को हम बोलते हैं size of nucleus. Radius of nucleus and radius of atom is very different, right? Radius of atom मतलब हम orbits की बात कर रहे हैं, जो बहुत बड़ा होता है. Radius of atom is in terms of angstroms. Nucleus is very very small. It is in Fermi's 10⁻15. समझ में आया क्या? तो साइज ऑफ न्यूक्लियस क्या होता है? फॉर्मूला इज दिस, इट इज R इज इक्वल टू R नॉट A रेज टू 1/3, मतलब क्यूब रूट ऑफ A बेसिकली. R नॉट इज 1.5 1.2 इंटू 10⁻15, राइट, मीटर्स, करेक्ट. ओके, तो ये देखो फर्मी में 10⁻15 तक जा रहा है और ये एटॉमिक मास नंबर है. तो अगेन रेडियस ऑल्सो डिपेंड्स ऑन एटॉमिक मास नंबर. तो मास डिपेंड कर रहा है मास नंबर पे, साइज भी डिपेंड कर रहा है, रेडियस भी डिपेंड कर रहा है मास नंबर पे. इफ आई कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस निकाला, तो न्यूक्लियस को हम लोग कैलकुलेशन में क्या ले लेते हैं, वी से इट इज अ स्फीयर, तो वॉल्यूम विल बी 4/3 पाई आर क्यूब. जस्ट पुट द आर का वैल्यू, व्हाट डू यू गेट, 4/3 पाई आर नॉट क्यूब ए. तो अगेन इवन द वॉल्यूम डिपेंड्स ऑन द मास नंबर, ठीक है. अच्छा, अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछते हैं, प्रूव दैट डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज कांस्टेंट, ये पूछते हैं हमको. ओके, तो लेट्स कैलकुलेट डेंसिटी, ये प्रूव कर रहे थे. डेंसिटी रो इज सिंपली व्हाट, मास ऑफ न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस. मास ऑफ न्यूक्लियस क्या मिला हमको, A इंटू एम मिला है अप्रोक्सीमेटली. ओके, एंड वॉल्यूम कितना मिला हमको, 4/3 पाई आर नॉट क्यूब, राइट, इंटू ए. तो ए क्या हो जा रहा है, बाय बाय हो जा रहा है क्या, तो 3m इंटू 4 पाई आर नॉट क्यूब, है ना. So this value is very high, extremely high value. Okay, and this is all mass of, this is mass of proton or neutron. This is R naught is constant. बाकी सब तो constant है ये. You can say this value is constant. Hence proved. Okay, and this value is extremely high. Okay, बहुत ज़्यादा value 10⁻18 तक आता है शायद. Okay, and the most dense metal that we know, metal या जो element पता है वो कौन सा है, osmium कुछ तो है ना, ठीक है. उसका भी शायद 10⁻4 या 6 के आसपास आता है ना, ऐसा कुछ है, ठीक है. उससे भी काफ़ी ज़्यादा है ये वैल्यू. तो एनी विच वेज, तो दिस इज द फर्स्ट प्रूफ, ठीक है. ओके, सेकेंड थिंग दैट यू शुड नो, सेकेंड जो कॉन्सेप्ट है जो हमको बताना चाहिए, विच इज कॉल्ड एज बाइंडिंग एनर्जी. बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस. सो दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट टेल्स अस अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस. ना न्यूक्लियस रेडियो एक्टिव होगा कि नहीं होगा, वो हमको बाइंडिंग एनर्जी का वैल्यू देख के समझ में आता है. पहले बाइंडिंग एनर्जी है क्या वो सुनो. Okay, what is binding energy? It is the amount of energy released. Energy released when a nucleus is formed. During nucleus formation. Or I can say that I can give you ultra definition also. हम उसको ऐसे भी देख सकते हैं कि या तो ऐसे बोलो कि एक न्यूक्लियस फॉर्म हुआ था तो 20 जूल्स ऑफ एनर्जी रिलीज हो गई, या उल्टा बोलो कि अगर 20 जूल्स ऑफ एनर्जी सप्लाई किया तो न्यूक्लियस ब्रेक हो जाएगा. Is also equal to the amount of energy required to break a nucleus. Is making sense? ठीक है. न्यूक्लियस फॉर्मेशन के टाइम जितना एनर्जी रिलीज हो रहा है उतना एनर्जी हम सप्लाई करते हैं तो न्यूक्लियस ब्रेक भी हो जाएगा. समझ में आया? हाउ टू गेट दिस एनर्जी, सी अंडरस्टैंड. तो कैसे करेंगे देखो, बाइंडिंग एनर्जी निकालने के लिए वी हैव टू फाइंड समथिंग एज मास डिफेक्ट. ओके, इनफैक्ट दैट्स हाउ वी नो कि एनर्जी हैज बीन रिलीज्ड. मास डिफेक्ट क्या है कि जब एक न्यूक्लियस फॉर्म होता है तो वी अंडरस्टैंड कि उसमें A माइनस जेड न्यूट्रॉन्स है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, ये Nn है. ओके, एंड Z प्रोटॉन्स है, राइट, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. तो इतने प्रोटॉन्स से इतने न्यूट्रॉन्स सब साथ में आ रहे हैं, ठीक है. तो व्हाट शुड बी द मास ऑफ न्यूक्लियस, इट शुड बी दिस. मास ऑफ न्यूक्लियस शुड बी A माइनस जेड इंटू Mn प्लस ZMP, राइट. ये होना चाहिए मास ऑफ न्यूक्लियस. पर जब उसको जिसको बोलते हैं कैलकुलेटेड मास ऑफ न्यूक्लियस, ये कैलकुलेट करके आ रहा है. बट जब हम मेजर करते हैं उसको, मेजर मास इज स्लाइटली लेस. तो समझ हमने जब कैलकुलेट किया तो हमको आया 20 एटॉमिक मास यूनिट, बट जब मेजर किया तो आया 19.6 एटॉमिक मास यूनिट.
तो मतलब 0.4 का मास गया, समझा गया? गया मतलब कौन से फॉर्म में गया वो? दैट इज रिलीज द फॉर्म ऑफ बाइंडिंग एनर्जी। तो मास डिफेक्ट पता है तो उसको c² से मल्टीप्लाई करके हम लोग बाइंडिंग एनर्जी निकाल सकते हैं। तो लेट्स राइट मास डिफेक्ट इज डेल्टा एम इज सिंपली कैलकुलेटेड मास माइनस मेजर्ड मास ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, एंड दैट इज सिंपली ZMP प्लस A माइनस ZMN। दिस इज द कैलकुलेटेड मास माइनस जो भी मेजर करते हैं उसको m, they will give this value to you minus m. This is your delta m. And if you want binding energy, it is simply delta m into c², ठीक है। डेल्टा m अगर kgs में है तो c² से मल्टीप्लाई करो, तुमको आंसर जूल्स में मिल जाएगा, ठीक है। ओके, kgs में है तो अगर एटॉमिक मास यूनिट में दिया है वैल्यू, मोस्टली AMU में देते हैं हम लोग, इफ दे गिव यू इन AMU स्मॉल यू लिखा होगा, ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाय 931.5 तो यू गेट आंसर इन MeV। आंसर MeV मतलब मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मिल जाता है, ठीक है। तो देखना पड़ेगा कि कैसा इन्फॉर्मेशन जो है उस हिसाब से तुम मल्टीप्लाई कर लो। इट मेक सेंस, ठीक है। तो यू गॉट द बाइंडिंग एनर्जी। व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी? सिंपली इट्स द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड एंड हाउ टू गेट द वैल्यू, इट इज डेल्टा m into c²। हाउ टू गेट डेल्टा m? इट इज कैलकुलेटेड मास माइनस एक्चुअल मास। ये एक्चुअल मास देते हैं वो लोग, ठीक है, और ये हमको कैलकुलेट करना पड़ता है बाय लुकिंग एट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, उसके मास से मल्टीप्लाई कर लो, समझा? एंड ऑल्सो यू कैन गेट द आंसर इन टर्म्स ऑफ जूल्स और MeV डिपेंडिंग ऑन द इन्फॉर्मेशन गिवन टू यू कि मासेस कैसे दिए वो देखना पड़ेगा। एनी क्वेश्चंस यहाँ पे? ओके, अच्छा। एक और टर्म है जो बहुत पॉपुलर है, इसको बोलते हैं हम लोग बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। अगर ये दिया है अपने को, इट इज बेसिकली बाइंडिंग एनर्जी डिवाइड बाय एटॉमिक मास नंबर। तो बहुत बार क्या करते हैं, वो बाइंडिंग एनर्जी नहीं देते, ठीक है, वो देते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो ऐसे केस में दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन मल्टीप्लाई बाय A टू गेट द बाइंडिंग एनर्जी। समझ में आया क्या? ओके, एंड इसका एक ग्राफ भी है। दे हैव ड्रॉन अ ग्राफ ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस एटॉमिक मास नंबर और नंबर। तो ग्राफ अपीयर्स समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट। हम रफ बना रहे तो टेक्स्ट बुक में है डायग्राम, सब ऐसा कुछ दिखता है। ये जो टॉप पे जितने भी लोग हैं, ओके, इनका बाइंडिंग एनर्जी काफी हाई है। दिस इज अप्रोक्सीमेटली आई थिंक 7.8 MeV के आसपास है ये। और जो टॉप पे बैठा है वो है आयन, इट इज 8.8 MeV। एंड यू मस्ट नोटिस दैट कि दिस एलिमेंट्स, ये जो एलिमेंट्स यहाँ पे है और ये जो एलिमेंट्स यहाँ पे, इनकी बाइंडिंग एनर्जी लो है, isn't it? तो लो बाइंडिंग एनर्जी मतलब, देखो, लो बाइंडिंग एनर्जी का मतलब ये हो गया कि लेस एनर्जी वाज रिलीज्ड ड्यूरिंग न्यूक्लियस फॉर्मेशन। लेस एनर्जी रिलीज हुआ मतलब क्या है कि अगर उनको न्यूक्लियस तोड़ना होगा तो बहुत कम एनर्जी में टूट जाएगा वो, isn't it? है ना? और हाई बाइंडिंग एनर्जी मतलब क्या है कि उसको न्यूक्लियस को ब्रेक करने के लिए वी हैव टू हैव वेरी हाई एनर्जी। समझ में आ रहा है क्या? तो स्टेबिलिटी का मतलब क्या होगा कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक, राइट? तो इसका मतलब क्या है कि मुझे अगर डिफिकल्ट टू ब्रेक वाला सिचुएशन चाहिए तो आई शुड हैव हाई बाइंडिंग एनर्जी। तो यू शुड नो दैट कि हाई बाइंडिंग एनर्जी means more stability, ठीक है, for the nucleus, we are talking about the nucleus here। तो यहाँ पे जो एलिमेंट्स है they will do nuclear fusion, और यहाँ पे जो एलिमेंट्स है, जो heavier एलिमेंट्स है, they do fission to become stable। तो बाइंडिंग एनर्जी should be as high as possible। समझ में आया क्या? अब न्यूमेरिकल्स के लिए एक टिप दे देता हूँ तुमको, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर न्यूमेरिकल्स। इफ दे गिव मी रिएक्शन लाइक दिस, A plus B is equal to C plus D टाइप्स, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे 2 एलिमेंट्स हो सकते हैं, यहाँ पे 4 हो सकते हैं, जो भी हो, मतलब ऐसा कुछ रिएक्शन दिया, बोला बताओ कि व्हाट इज द एनर्जी रिलीज इन दिस प्रोसेस। ओके, ऐसे क्वेश्चंस है हमारे पास, HSC में ही पूछते हैं वो लोग। तो देयर आर 2 वेज टू कैलकुलेट द एनर्जी रिलीज। कोई कोई इसको Q वैल्यू भी बोलता है। ओके, तो कैसे निकालेंगे? देखो, या तो तुम ऐसे कर सकते हो, इट इज मास ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट कर लो, ठीक है। जैसे यहाँ पे 5 kg है, यहाँ पे 4.5 kg, तो 0.5 kg चला गया, ठीक है, तो उससे मिल जाएगा। ऑब्वियसली यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय c² और 931 डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज द डेटा गिवन। ये तरीका नंबर 1 है। तरीका नंबर 2 क्या है? बाइंडिंग एनर्जी। ओके, वी डू उल्टा, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, ये भी पूछ सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे देखो बाइंडिंग एनर्जी दिया है, नॉट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। समझ में आया क्या? कभी कभी वो क्या करते हैं, ऐसे ऐसे लिख देंगे, A में लिखेंगे 8 4 12 5, ऐसा कुछ तो लिखा हुआ है, 6 2, कुछ तो लिख दिया मैंने नंबर्स, ऐसे रैंडम नंबर ले रहा हूँ मैं। और मैंने अगर तुमको समझ लो A का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दिया है,
तो तुमको क्या करना है, पहले बाइंडिंग एनर्जी ढूंढो उसका, कैसे करोगे, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर इंटू 8 इंटू मास नंबर, ऐसे सबका करना पड़ेगा। पहले बाइंडिंग एनर्जी निकालो हर एक का, देन डू द सब्ट्रैक्शन, डोंट डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट। दिस इज नॉट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर का सब्ट्रैक्शन, इट इज बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स, सबका बाइंडिंग एनर्जी का सब्ट्रैक्ट करना है। समझ में आएगा? दिस इज द मोस्ट कॉमन मिस्टेक, डोंट डू दैट। एनी क्वेश्चंस हियर? अच्छा, ऐसा क्यों कर रहे हैं, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट क्यों कर रहे हैं हम यहाँ पे, व्हाट इज द रीजन, उल्टा क्यों कर रहे हैं यहाँ पे? क्योंकि तुमको समझना है कि जब ये रिएक्शन हुआ तो उसका मतलब क्या है कि these two nucleus were broken and these two nucleus were formed। तो जब फॉर्म होगा तो एनर्जी रिलीज करेगा, और ब्रेक करने के लिए एनर्जी कंज्यूम करेगा। तो लेट्स से रिलीज किया 100 और कंज्यूम किया 80, तो 100 माइनस 80 शुड बी आंसर, शुड बी ऑलवेज प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। चमका न्यूक्लियस में जब बाइंडिंग एनर्जी कॉन्सेप्ट उल्टा है, मतलब है ना, ब्रेक करने के लिए एनर्जी लेना पड़ता है, और जब बनता है तो एनर्जी रिलीज करता है। तो कितना रिलीज किया, मैस कितना कंज्यूम किया, दैट्स द फाइनल एनर्जी रिलीज। क्यू वैल्यू बोलो इसको या एनर्जी रिलीज बोलो, एक ही बात है। some people call इसको Q value, some people call इसको energy released। Any questions? You got it? So this kind of numericals are common, so that's why we did this binding energy concept। ठीक है, I think we are set to go for next one। What is the next concept? DK law कर लेते हैं, DK law कर लेते हैं, and या तो फिर पहले यही कर लेते हैं, अल्फा बीटा गामा DK कर लेते हैं, and then let's come to DK law, है ना? Okay, so अल्फा DK, इसमें तो वो क्या पूछ सकते हैं, मैक्सिमम they can ask you find the Q value of the reaction। okay, alpha decay का मतलब क्या है? What is alpha decay? Alpha particle is doubly ionized helium atom, if the nucleus is unstable it goes into radioactive mode। okay, radioactive mode का मतलब क्या है कि अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गामा रेज वो एमिट करता है ना। अल्फा पार्टिकल एमिट किया मतलब हम ऐसे बोलते हैं कि इफ यू हैव अ पैरेंट न्यूक्लियस AZ, ठीक है, तो वो क्या करेगा, एक अल्फा पार्टिकल He++ बोलो या अल्फा पार्टिकल बोलो, ओके, वो रिलीज करेगा। तो जैसे ही अल्फा पार्टिकल रिलीज कर रहे हैं हम लोग, तो He++ का मतलब यहाँ पे एटॉमिक मास नंबर इज 4, एटॉमिक नंबर इज 2। तो जो भी डॉटर बनेगा, ठीक है, उसमें क्या होगा कि मास नंबर शुड रिड्यूस बाय 4 एंड Z शुड रिड्यूस बाय 2। यू हैव अ न्यू एलिमेंट आफ्टर अल्फा पार्टिकल इज रिलीज्ड एंड सम एनर्जी इज रिलीज्ड, को Q बोल रहा है, Q वैल्यू। ये ढूंढना है हमको, ये निकालते हैं हम। ओके, यू गेट दैट। दिस इज द रिएक्शन। ओके, अल्फा पार्टिकल में ऐसा रिएक्शन होता है कि एक अल्फा पार्टिकल निकल रहा है, मतलब हीलियम प्लस निकल रहा है, डबली आयनाइज्ड हीलियम एटम। अब देखो इसका Q वैल्यू कैसे निकालते हैं। ओके, तो मैंने क्या तुमको बताया Q वैल्यू निकालने का फंडा क्या है, इट इज मास ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट, राइट। बट यू मस्ट अंडरस्टैंड कि रेडियो एक्टिविटी में जो अल्फा डीके हो रहा है, ये सब हाई एनर्जी और हाई टेम्परेचर रिएक्शंस है। ऐसे रिएक्शंस में इलेक्ट्रॉन्स का कोई रोल नहीं होता है, टेम्परेचर सो हाई दैट एटम ऑलरेडी लूजेस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन हो रहा है, ये एक्स एटम रिएक्ट नहीं कर रहा है, एक्स का न्यूक्लियस रिएक्ट कर रहा है। समझ में आ रहा है क्या? दिस इज न्यूक्लियस ऑफ एक्स, न्यूक्लियस ऑफ वाई एंड हीलियम का न्यूक्लियस। इज मेकिंग सेंस? तो दिस रिएक्शन इज अ न्यूक्लियर रिएक्शन। समझ में आएगा? ओके, चलो न्यूक्लियर रिएक्शन तो कैसे, तो यहाँ पे मास किसका आएगा, न्यूक्लियस का मास आएगा। तो हाउ डू आई गेट मास ऑफ न्यूक्लियस? इट इज मास ऑफ एटम माइनस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो देखा अभी, देखो मैं करते हैं कैसे, यही ध्यान देना है तुमको बस। मास ऑफ रिएक्टेंट ये x है ना, तो मास ऑफ रिएक्टेंट इज mx माइनस ZME। तो वो चमका, मैंने क्या किया, मैंने क्या किया कि रिएक्टेंट का चाहिए था, तो मास ऑफ एटम माइनस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, Z नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इट विल हैव, राइट। ठीक है, माइनस आ जाओ यहाँ पे, इसका भी सेम लॉजिक, मास ऑफ y माइनस Z माइनस 2 ME, करेक्ट, प्लस MHE माइनस 2 ME। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, अब कर लो, ये तो मिल गया। ठीक है, MX माइनस ZME माइनस MY प्लस ZME माइनस 2ME माइनस MHE प्लस 2ME। मैंने ब्रैकेट ओपन कर दिया। ओके, एंड ZME बाय बाय, 2ME बाय बाय, एंड यू हैव योर MX माइनस MY माइनस MHE। दैट्स हाउ यू गेट द Q वैल्यू। तो ये रिएक्शन आया, तो जस्ट एटम्स के मास को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं।
आई होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट. समझ में कैसे किया? ठीक है, आ जाओ, विल गो फॉर बीटा डीके. बीटा डीके में एक्चुअली वी हैव टू टाइप्स ऑफ डीके. ओके, बीटा माइनस बीटा प्लस. व्हेन आई से बीटा डीके बाय डिफॉल्ट आई मीन बीटा माइनस डीके, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है. ओके, तो स्टार्ट विद बीटा माइनस. आ जाओ. तो बीटा माइनस में क्या हो रहा है कि यू हैव एन एलिमेंट, पैरेंट एलिमेंट एक्स, इट गिव्स आउट एन इलेक्ट्रॉन, ई माइनस निकल रहा है, प्लस सम एनर्जी इज बीइंग रिलीज्ड, एंड यू हैव यहाँ पे डॉटर विच इज, अब समझना पड़ेगा यहाँ पे क्या हो रहा है कि एटॉमिक मास. तो इलेक्ट्रॉन्स ये तो नहीं चेंज होता, ठीक है, जेड चेंज हुआ, कैसे चेंज हुआ देखो. पहले तो ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में से निकल के आया है. ओके, तो हाउ डू यू गेट दिस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम, व्हाट हैपेंड इनसाइड द न्यूक्लियस वाज कि एक जो प्रोटॉन है इट ब्रेक्स इनटू अ न्यूट्रॉन एंड अ इलेक्ट्रॉन, सॉरी, a neutron breaks into a proton and an electron, isn't it? Okay, but इसमें रिएक्शन में क्या हो रहा है कि ये तो प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव, तो चार्ज इज बैलेंस्ड बट इलेक्ट्रॉन्स हैव अ टेंडेंसी टू स्पिन, का स्पिन मोशन होता है, राइट. तो इनके स्पिन को बैलेंस करने के लिए पॉली ने बताया था कि देयर इज अ थर्ड पार्टिकल विच इज कॉल्ड एज एंटी न्यूट्रिनो विच विल बैलेंस द स्पिन मोशन. तो यहाँ पे हमको चार्ज भी कंजर्व करना पड़ता है और एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व करना पड़ता है, समझे. तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन नहीं बाहर निकल रहा है, यहाँ पर दिस वन मोर पार्टिकल एंटी न्यूट्रिनो, वो भी बाहर निकल रहा है, एंटी न्यूट्रिनो. ठीक, दिस इज द कंप्लीट रिएक्शन एंड यू सी व्हाट इज हैपनिंग कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया, तो इसलिए एक ए चेंज नहीं हुआ है, बट एक प्रोटॉन का नंबर बढ़ गया है, तो Z+1 होना चाहिए. whenever a beta particle is emitted here in beta minus particle, तो Z+ हो जाता है. Any questions? अब चलो इसका की वैल्यू निकालते हैं. कैसे है बताओ, मास ऑफ रिएक्टेंट कैसे लिखेंगे, Mx माइनस Zme, ये हो गया हमारा रिएक्टेंट माइनस. इधर आ जाओ, ठीक है, तो इट विल बी My माइनस Z+1 Me, है ना, प्लस Me, करेक्ट. Any questions? Neutrinos are like the photon type particles. They don't have mass. Rest mass नहीं होता उनका. Okay, rest mass नहीं होता उनका. Okay, open the bracket. Tell me what do you get. Mx minus Zme minus My, यहाँ पे आ जाएगा प्लस Zme, है ना, प्लस Me, है ना, माइनस Me. ठीक है, तो this will get cancelled. This will get cancelled. You have simply Mx minus My. अगेन रिमेंबर, सी स्क्वायर से करना है कि 931 डिपेंड्स कि मास का इंफॉर्मेशन केजीस में है कि एएमयू में. समझ आया. चलो लास्ट वन, लास्ट इज बीटा प्लस डीके. बीटा प्लस डीके, बीटा प्लस में क्या होगा, अगेन सेम, पेरेंट ए एंड देन यू हैव अ डॉटर एंड इंस्टेड ऑफ हैविंग अ इलेक्ट्रॉन कमिंग आउट वी हैव अ पॉजिट्रॉन कमिंग आउट. ठीक है, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है पॉजिट्रॉन, सम एनर्जी इज रिलीज्ड. लेट्स सी कि ये पॉजिट्रॉन कैसे आ रहा है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक न्यूट्रॉन जो है, ठीक है, दैट ये पॉजिट्रॉन चाहिए ना हमको यहाँ पे, तो प्रोटॉन जो है, ओके, इट ब्रेक्स इनटू अ न्यूट्रॉन प्लस अ पॉजिट्रॉन. अगेन इट हैज अ स्पिन लाइक दिस, पॉजिट्रॉन के पास भी स्पिन होता है, तो उसको बैलेंस करने के लिए वी हैव न्यूट्रिनो. दिस न्यूट्रिनो, तो आई शुड ऐड वन मोर यहाँ पे, न्यूट्रिनो. अगेन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हुआ है, इसलिए ए पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा बिकॉज दैट ए नंबर इज कंजर्व्ड, बट अ प्रोटॉन हैज बीन रिड्यूस्ड, तो वी कैन ऑलवेज पुट Z-1. दिस इज द रिएक्शन. आई थिंक एवरीथिंग इज करेक्ट हियर. ओके, आ जाओ, क्यू वैल्यू कैसे निकालेंगे. इट इज अभी भी वही Mx माइनस Zme माइनस दिस विल बी My माइनस Z-1 Me, correct, plus Me, okay, and you have Mx minus Zme minus My minus plus Zme, correct, है ना, minus Me minus Me, correct, and I think you have यहाँ पे ये तो कैंसिल हो रहा है, you have Mx minus My minus 2Me, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का टर्म बच रहा है. ठीक है, ओके, तो यह क्यू वैल्यूज फॉर ऑल ऑफ देम. क्यू वैल्यू फॉर हमने बीटा कर लिया, दोनों कर लिए. चलो, आई थिंक दिस इज गुड इनफ.
दिस इज लॉ एक्स्ट्रा विच यू शुड नो हाउ टू कैलकुलेट इन केस दे आस्क यू, है ना. क्या बचा लास्ट? डीके लॉ है ना लास्ट है. और कोई बचा है क्या? हाँ वो डीके लॉ का ही पार्ट है, तो विल डू डीके लॉ. डीके लॉ में डीके लॉ करना है हमको, एंड देन वी हैव टू आल्सो टू हाफ लाइफ मीन लाइफ का. हाफ लाइफ डेरिवेशन पूछते हैं, मीन लाइफ का डायरेक्टली डेटा यूज कर लेते हैं हम लोग, देख लेते हैं वो भी. ठीक है. सो यू मस्ट अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है डीके लॉ में. इट्स थोड़ा कॉमन सेंस टाइप्स. ओके. एंड जैसे वो SN1 रिएक्शन करता है वैसा वो चाहिए. ओके. कि अगर एटम अनस्टेबल हो गया, न्यूक्लियस अनस्टेबल हो गया, तो क्या होगा कि इट विल कन्वर्ट्स इनटू अदर एलिमेंट्स. जैसे ये x जो है वो y में कन्वर्ट हो रहा है, तो विच टाइम व्हाट विल हैपन कि x का नंबर विल रिड्यूस, y का नंबर विल इंक्रीज, राइट. ओके. तो ये जो इंक्रीज ऐसा कुछ है कि तो 1000 एटम्स है, थोड़ी देर के बाद तो 500 हो जाएगा, थोड़ी देर के बाद तो 250 हो जाएगा, थोड़ी देर के बाद 125 हो जाएगा, फिर 62.5 हो जाएगा. ऐसे नंबर्स कम कम होते जा रहे हैं, इजंट इट करेक्ट. तो व्हाट यू शुड अंडरस्टैंड कि नंबर्स रिड्यूस हो रहे हैं विद टाइम, दैट इज कॉमन सेंस, बट हाउ द वे दे आर रिड्यूसिंग इज समथिंग यू शुड ऑब्जर्व. कि यहाँ पे देखो 31 एटम्स कुछ चले गए और यहाँ पे 500 एटम्स आर डिकेड. तो द हाउ मेनी एटम्स आर डिकेइंग पर टाइम, दैट नंबर इज आल्सो रिड्यूसिंग विद टाइम. पहले रेट ऑफ डीके वाज वेरी फास्ट. इसको बोलते हैं रेट ऑफ डीके. रेट ऑफ डीके मतलब कितने एटम्स रिड्यूस हो रहे हैं विद टाइम, राइट. कितने एटम्स डीके हो रहे हैं वो नंबर भी कम हो रहा है. समझा क्या? वो नंबर किस पे डिपेंड कर रहा है कि कितना नंबर उस टाइम था. जैसे 1000 था तो एक साथ 500 चला गया, पर अगर सिर्फ 60 है तो ओनली 31 इज गोइंग. समझ में आ रहा है? तो हाउ मेनी एटम्स आई हैव एट दैट मोमेंट, उस टाइम पे उस समय पे जितना एटम्स है उसके हिसाब से रेट एडजस्ट करता है अपने आपको. समझ में? जितने पैसे उतने खर्च करो उस टाइप के. समझ में? ऐसे ओवरबोर्ड नहीं जाना है, मतलब उस टाइप का. ठीक है. ठीक है. तो मैं कुछ टर्म्स लिखता हूँ, देखो. राइट. तो यहाँ पे मैंने रेट ऑफ डीके वर्ड यूज किया, तो तुमको ऐसे रेट ऑफ डीके, इफ आई यूज दिस वर्ड इट इज एक्चुअली dN/dt. व्हाट इज dN? नंबर ऑफ एटम्स लॉस्ट इन टाइम dt. समझा? जैसे 500 एटम लॉस कर दिए 5 सेकेंड में, तो 5 सेकेंड्स इज अ dt टाइम इंटरवल. कितने लूज किए हमने, दैट इज हाउ डिड आई फाइंड दैट? इनिशियल माइनस फाइनल करके निकाला मैंने. dN इज डिफरेंस. हाँ ठीक है. रेट ऑफ डीके, इसको मैथमेटिकली करेक्ट होने के लिए वी कैन पुट अ माइनस एन आल्सो. ठीक है. कि नंबर रिड्यूस हो रहा है टाइम, रेट इज रिड्यूसिंग, तो मैथमेटिकली करेक्ट होने के लिए यू कैन पुट माइनस आल्सो. बट dN/dt का मतलब क्या है? रेट ऑफ डीके. समझा? नंबर ऑफ एटम्स डिकेड या नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिकेड यू कैन से per time. There is one more word for this. There is a word called as activity. इसको एक्टिविटी भी बोलते हैं हम. समझ में आया क्या? HSC में सिंबल A है, A. तो A is minus dN/dt भी लिखते हैं. एक्टिविटी भी वर्ड यूज करते हैं, है ना. एक्टिविटी इज मेजर्ड इन डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड. 1 डिसइंटीग्रेशन, एक एटम लूज करो 1 सेकेंड में, तो दैट इज 1 becquerel. हेनरी बेक्यूरेल के नाम पे है. ऐसे 3.6 10 to the power 10 अगर लूज करो एटम्स पर सेकेंड, दैट इज 1 curie CI. तो 1 curie यू शुड नो, 1 curie 1 becquerel. These are units of rate activity, rate of decay. समझ में आया क्या? तो 1 becquerel is basically 1 disintegration per second. Okay. And 1 curie 1 CI is I think 3.6 10 to the power 10 becquerels, yeah, we can say disintegration per second. So these are all scientists who contributed to radioactivity, उनके नाम पे रखा हुआ है. ठीक है. अरे यार इसको ऐसे ही रहने देते हैं. इसकी भी लाइक दिस, इसको यहाँ पे पर सेकेंड. ओके, आई थिंक दिस इज ठीक है. तो आई जस्ट राइट, देखो. तो आई एम अज्यूमिंग एट सर्टेन इंस्टेंट t, लेट्स अज्यूम दैट नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो है वो कुछ n है, ऐसे अज्यूम करते हैं. तो डीके लॉ क्या बोल रहा है कि रेट ऑफ डीके जो है वो डिपेंड कर रहा है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ एटम्स इंसिडेंट एट दैट मोमेंट, है ना. तो यू कैन से दैट रेट ऑफ डीके dN/dt इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एटम्स एट दैट इंस्टेंट. हाँ, तो वी आर सेइंग डीके लॉ इज बेसिकली रेट ऑफ डीके इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम व्हिच इज t. ओके. सो वी नीड कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है लैम्डा. इसको बोलते हैं हम लोग डीके कांस्टेंट. डीके कांस्टेंट का जो वैल्यू है किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन द एलिमेंट. फॉर एग्जांपल पोलोनियम के लिए अलग होगा, प्लूटोनियम के लिए अलग होगा, सब, है ना. यूरेनियम के लिए अलग होगा. तो डिपेंड्स ऑन द एलिमेंट टाइप. ओके. इसका एक्सप्रेशन देखो कैसे निकालेंगे हम लोग. लेट्स ट्राई टू गेट n टर्म्स ऑन वन साइड, अदर टर्म्स ऑन द
राइट हैंड साइड, तो n का टर्म है यहाँ पे ले आओ तो ये नीचे n हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस लैम्डा dt। नाउ इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स, इंटीग्रेट, ठीक है, इंटीग्रेट करके क्या मिलेगा, इंटीग्रेट करेंगे तो देखो अब यहाँ पे समझो, मतलब जैसे मैंने यहाँ पे जब एग्जांपल लिया था, बोला कि इनिशियली 1000 एटम्स थे, फिर कम होते 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 अभी फिलहाल 31 है, राइट। ओके, तो आई एज्यूम सर्टेन नंबर ऑफ एटम एट द स्टार्ट, राइट। तो यहाँ पे उसको बोलेंगे n नॉट, लेट्स से एट t इक्वल टू 0, यहाँ पे टाइम का लिमिट्स लगेगा, एट t इक्वल टू 0 मेरे पास n नॉट नंबर ऑफ एटम्स है। आफ्टर सम टाइम t, थोड़ी देर के बाद मेरे पास कितने एटम्स है, n एटम्स या न्यूक्लियर एक ही बात है, हाँ, ठीक है, n, दिस इज द लिमिट्स, यू गॉट द लिमिट्स। इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स कितना है, n नॉट, ओके, आफ्टर सम टाइम यू हैव n नंबर ऑफ एटम्स, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ दिस, इट इज ln n, लिमिट्स n नॉट से लेके n तक, माइनस लैम्डा विल गो आउट, इंटीग्रेशन ऑफ dt इज t, 0 से t सब्स्टिट्यूट करो, क्या मिलेगा, ln n माइनस ln n नॉट इज इक्वल टू माइनस लैम्डा t के ln n upon n naught is equal to minus lambda t, ln will go that side, n upon n naught is equal to e raised to minus lambda t, so n is equal to n naught e raised to minus lambda t, this is expression, or we can say n as a function of time है ये, है ना, number of atoms जो present है अभी, this is number of atoms present at that moment, ठीक है, this is that expression। ग्राफ बनाया तो ऐसे दिखेगा, n versus t का जो ग्राफ है, it is exponential decrease, so it goes like this, starts from n naught and then it decreases to 0, थोड़ा टाइम लग गया डिक्रीज होने के लिए, ठीक है, एन ऐसा फंक्शन टाइम। इफ यू वांट, जैसे ये तो एक्स्ट्रा है, अगर पूछा तो इफ यू वांट कि कितना एटम डीके हो गया है, तो नंबर ऑफ एटम्स डीकेड क्या होगा, तो नंबर ऑफ एटम्स डीकेड, ये तो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है ना, अभी कितना है वो है, सी व्हाट इज एन, नंबर ऑफ एटम्स एट टाइम टी, इजंट इट, तो ये प्रेजेंट नंबर ऑफ एटम्स, इतना बचा हुआ है मेरे पास, कितना खत्म हो गया चाहिए, तो इट इज सिंपली इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स माइनस प्रेजेंट, ठीक है, ये पुट यहाँ पे वैल्यूज, यू गेट n नॉट कॉमन 1 माइनस e रेज़ टू माइनस लैम्डा, समझ में आएगा। इफ यू वांट यू कैन ऑलवेज गेट दिस आल्सो। एनी क्वेश्चंस, आ जाओ, ये समझ में आ गया है तो दो फॉर्मूला बताता हूँ और बिफोर आई गो फॉर द डेरिवेशन। एक तो ये समझो कि एक हाफ लाइफ का फॉर्मूला समझने को, कि अगर ये हाफ लाइफ की फॉर्मूला के देखो, ये तो कॉमन सेंस है, मतलब समझो मेरे पास n नॉट नंबर ऑफ एटम्स है, ओके, तो व्हाट इज हाफ लाइफ, it is the time in which, okay, when if time is half life, okay, then number of atoms should be half of initial number of atoms, है ना, अगर 1000 तो 500 हो जाने चाहिए, मतलब n नॉट है तो n नॉट बाय 2 हो जाना चाहिए, ओके, you use this information in this equation, डालो इसमें क्या मिलेगा बताओ, तो यहाँ पे n का वैल्यू n नॉट बाई 2 है, इज इक्वल टू n नॉट e रेज़ टू माइनस लैम्डा कैपिटल T, इजंट इट, n नॉट बाय बाय हो गया, ठीक है, 2 रेज़ टू माइनस 1 इज इक्वल टू e रेज़ टू माइनस लैम्डा t, व्हिच मींस e रेज़ टू लैम्डा t शुड बी इक्वल टू 2, इजंट इट, ओके, e को वहां ले जाओ तो ln बन जाएगा, लैम्डा t इज इक्वल टू ln2, और हाफ लाइफ इज ln2 अपॉन लैम्डा, ln2 का वैल्यू वी शुड नो, इट इज 0.693 लैम्डा, ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर हाफ लाइफ, ठीक है, ओके, ये तो पता ही होना चाहिए। एक और फॉर्मूला रख लो अपने पास न्यूमेरिकल्स के लिए, कि अगर 1 लाख हाफ लाइफ पास हुआ तो मतलब नंबर ऑफ एटम्स 1/2, 2 हुआ तो 1/4, 3 हुआ तो 1/8, ठीक है, तो यू कैन राइट कि n इज ऑल्सो इक्वल टू n नॉट 1/2 रेज़ टू स्मॉल n, वेयर स्मॉल n इज नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स, कितना हाफ लाइफ हो गया है ना, हाफ लाइफ्स, ठीक है, ओके, एंड स्मॉल n इज गिवन टाइम अपॉन हाफ लाइफ टाइम, समझ लो, मुझे बोला कि 10 साल में कितना गया है, कितने एलिमेंट बचे हैं, और हाफ लाइफ 2 years है, तो मतलब 5 हाफ लाइफ हैज पास्ड, गिवन टाइम अपॉन हाफ लाइफ टाइम इज नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स दैट कैन बी पुट हियर टू गेट n का फॉर्मूला, ठीक है, तो ऐसे भी लिख सकते हो, बाकी ये फॉर्मूला तो है ही है, इस फॉर्मूला कैन ऑलवेज बी यूज्ड, टाइम दिया तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है, तो दिस इज हाफ लाइफ। व्हाट अबाउट योर मीन लाइफ या एवरेज लाइफ, मीन या एवरेज लाइफ, सी इसका निकालने का फंडा क्या है, इफ यू लुक एट द ग्राफ ऑफ नंबर ऑफ एटम्स विद टाइम का ग्राफ, तो ग्राफ ऐसे में जा रहा है, करेक्ट, ठीक है, तो इफ आई टेक जैसे एक टाइम t इंटरवल में
मतलब कैसे करना है इसको, दिमाग क्या लगाना है हमको इसमें यहाँ पे कि एग्जाम्पल देते, समझो कि हमारे पास 100 एटम्स हैं इनिशियली, ओके, और मैंने 10 सेकंड के बाद देखा, 10 सेकंड के बाद देखा तो अभी 90 एटम्स ही बचे, ठीक है, तो मतलब 10 एटम्स गए, तो 10 एटम्स के का लाइफ इज 10 सेकेंड्स, isn't it? So that is the amount of atoms lost, right? ठीक है ना। फिर मैंने और 15 सेकंड्स के बाद देखा तो अभी सिर्फ और सिर्फ 60 एटम्स ही बचे, तो और कितने उड़ गए? 30। तो ये 30 एटम्स जो अभी अभी उड़े है ना, उनका लाइफ कितना है? 15 सेकेंड्स। फिर मैंने और देखा तो 0 हो गए, और 25 सेकंड के बाद, 25 सेकंड के बाद कितने उड़े? 60। If I have to get average life, I'll say कि number of atoms into time, है ना, ठीक है, तो number of atoms into time 10 into 10 plus 30 into 15 plus 60 into 25 divided by total number of atoms, ऐसे ही करेंगे इसको, ठीक है। This is actually DN, this is number of atoms lost in dt time, ठीक है, and this is T, time at that moment। उस टाइम पे क्या टाइम था, मतलब उस टाइम पे 10 सेकंड था जब मैंने देखा, 20 सेकंड है ना, 10 सेकंड के बाद देखा तो इतने एटम चले गए, 15 सेकंड पे देखा तो इतने एटम चले गए, तो ये टाइम है एट दैट मोमेंट, टी है ये, समझ में आया क्या? तो डीएन इंटू टी को हमको ऐड करते जाना है, ठीक है। तो बेसिकली व्हेन आई टॉक अबाउट एवरेज लाइफ, टाउ इज द सिंबल, इट इज इंटीग्रेशन ऑफ डीएन इंटू टी न्यूमरेटर पे, तो नीचे क्या आएगा? टोटल नंबर ऑफ एटम्स, तो इधर आई कैन राइट एन नॉट और आई कैन राइट इंटीग्रेशन ऑफ डीएन, दोनों भी चलेगा, टोटल नंबर ऑफ एटम्स एन नॉट। समझ में आया कैसे डिफाइन किया इसको? समझ में आया क्या? ठीक है, तो दिस इज ये डीएन है, ठीक है, इनका लाइफ हम टी मान लेते हैं, मतलब तो इफ यू हैव तो वी अज्यूम दैट देयर लाइफ इज टी, दिस इज द डीएन नंबर ऑफ एटम, उनका लाइफ इज टी, डीएन इनटू टी इज द न्यूमरेटर पार्ट, इसका ऐड करेंगे तो हमको सबका न्यूमरेटर मिल जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स इनटू, तो एवरेज लाइफ निकालेंगे जैसे नंबर ऑफ एटम्स से डिवाइड कर दो, सिंपल। समझ में आया मैथ्स पार्ट? अब देखो इसे सॉल्व कैसे करेंगे। वी नो दैट कि n इज इक्वल टू n नॉट e रेज़ टू माइनस लैम्डा t, दिस वी गॉट फ्रॉम डीके लॉ, डेरिवेट दिस यू विल गेट dn इज इक्वल टू dn बाय dt कर लो, इज इक्वल टू n नॉट e रेज़ टू माइनस लैम्डा t इनटू लैम्डा, है ना, बिकॉज इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू माइनस x इज e रेज़ टू x ओनली, एंड देन डेरिवेट दिस, ओके, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट वो वैल्यू कम हो रही है, तो मैं इसको कंसिडर नहीं कर रहा, तो dn का वैल्यू क्या मिलेगा? n नॉट लैम्डा e रेज़ टू माइनस लैम्डा t dt, इस वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, ठीक है, तो यू विल गेट n नॉट लैम्डा e रेज़ टू माइनस लैम्डा t dt, और ये t ऑलरेडी यहाँ पे है, दिस इज द न्यूमरेटर अपॉन n नॉट। समझ में आया क्या? एंड इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक होगा? 0 से लेके, टाइम इज 0 हियर, यहाँ पे टाइम इज इन्फिनिटी, 0 से लेके इन्फिनिटी तक। If you solve this integration, n naught will get cancelled, lambda will come out, t into e raised to minus lambda t dt, है ना, तो तुमको पार्शियल फ्रैक्शन वाला सब फॉर्मूला वाला यूज करके सॉल्व करना पड़ेगा, तो you'll get 1 upon lambda। हमको सॉल्व नहीं करना है, बट वी शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई द फॉर्मूला। इन केस एमसीक्यू में 4 ऑप्शन दे दिया और पूछा कि भाई इसमें से कौन सा फॉर्मूला टाउ का है, ओके, तो एवरेज आएगा, यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई द फॉर्मूला, ओके, एंड यू शुड नो दिस वैल्यू, एटलीस्ट यू शुड नो हाफ लाइफ या मीन लाइफ दिया रहे या हाफ लाइफ दिया रहे, उसका पर्पस क्या होता है? टू गिव यू लैम्डा इनडायरेक्टली, ओके, तो लैम्डा मिल गया तो तुम डीके लॉ लगा सकते हो, एंड यू गेट नंबर ऑफ एटम्स एंड ऑल दोस थिंग्स। समझ में आया? एनी क्वेश्चंस? चलो हो गया।